Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 11.2 of your chapter mensuration. This chapter is from your 8 Mathematics NCERT. So students, question number 1 is, the shape of the top surface of a table is a trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and the perpendicular distance between them is 0.8 meter. तो स्टूडेंट्स देखिए, ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको यहाँ पर। यस, हमें क्या करना है, जस्ट ओनली जो फॉर्मूला हमने लर्न किया था उसमें वैल्यू पुट करनी है। देर आर द टू पैरेलल साइड्स 1 and 1.2 meters. There is a height, so just put the values in the formula. What is the formula? Half multiplied by a plus b multiplied by h, or we can say h multiplied with a plus b upon 2. ओके, जो हमने लेक्चर में देखा था। सो जस्ट वैल्यू पुट करिए। ए के जगह पर हमने 1.2 डाला, बी के जगह पर 1 डाला, एच के जगह पर 0.8। सो 2 1 जा, देन यहाँ पर 0.4 आ गया। 1.2 प्लस 1, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 वी गेट 0.88 मीटर स्क्वायर. So hence the required area is 0.88 meter square. Question number 2 is, the area of the trapezium is 34 centimeter square and the length of the one parallel side is 10 centimeter and height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. सिमिलर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितना इजी क्वेश्चन है। जस्ट जो हमने फॉर्मूला अभी देखा उसमें जस्ट वैल्यू पुट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, ट्रेपेजियम का एरिया दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, length of the one parallel side is 10 centimeter, height is h is equal to 4 centimeter. So we just find out the second side which is the b. ओके, तो वैल्यू यहाँ पर a के जगह पर 10 डाला, देन h के जगह पर 4, 34 एरिया। तो स्टूडेंट्स 2 1 जा, 2 2 जा, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 17 आ गया। 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी, 10 यहाँ पर माइनस में आ जाएगा तो 17 माइनस 10 इज इक्वल टू वी गेट 7 सेंटीमीटर। हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. Question number 3, length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. If BC is equal to 48 meter, CD is equal to 17 meter and AD is equal to 40 meter, find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. Okay, देखिए दिख रहा है आपको यहाँ पर ट्रेपेजियम। यस, देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू 120 मीटर। BC दिया है 48, CD दिया है 17, AD दिया है 40, तो यहाँ पर AB हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 120 माइनस 48 प्लस 17 प्लस 40 वी गेट 15 मीटर्स. नाउ स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होता है? एडिशन ऑफ द टू पैरेलल साइड्स प्लस हाइट यहाँ पर AB हो जाएगी, AD एंड BC यहाँ पर टू पैरेलल साइड्स हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हाफ मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 15 is equal to we get half multiply by 88 multiply by 15. So 2 ones are 4 4, 44 multiply by 15 we get 660 meter square. Hence the required area is equal to 660 meter square. And the next question is question number 4. The diagonal of a quadrilateral shape field is 24 meter and the perpendicular drop on it from the remaining opposite side vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. 13 मीटर दिया है, 24 मीटर दिया है, 8 मीटर्स भी यहाँ पर दिया है। तो स्टूडेंट देखिए, एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल BCD। तो 13 मीटर्स 24 यहाँ पर 8 मीटर्स आ गया। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। वाई? द एरिया ऑफ दिस फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पर 24, देन 13, 24 एंड 8, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 12 multiplied by 13 plus 12 multiplied by 8. We just take the common 12 by distributive law. So 13 plus 8 we get 21. So 12 multiplied by 21 we get 252 meter square. Hence the required area of the field is equal to 252 meter square. And the question number 5 is, the diagonals of the rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. What is the area of the rhombus? It is product of the diameter upon 2, or we can say product of the diameter multiply with half. So students, area of the rhombus is equal to half multiply by D1 multiply by D2. We get half multiply by 7.5 multiply by 12. 2 1s are 2 6 are 7.5 multiply by 6 we get 44 centimeter square, and the area of the rhombus is 45 centimeter square. Okay, so we get 45 centimeter square. Okay, 7.5 multiply by 6 we get 45 centimeter square.
Question number 6. Find the area of the rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. तो स्टूडेंट्स गिवन यहाँ पर साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द वन डायगोनल 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4.8 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर square, and area of the rhombus is equal to what? It's a product of diagonal upon 2. So 24 is equal to half multiply by d1 multiply by d2. 2 यहाँ पर जो है इस साइड पे आ जाता है, ओके. देन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है ना, d1 यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ द डायगोनल 8 सेंटीमीटर है. सो 2 1 जा 2 8 जा 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई d2. ये 4 d2 कैसे आया? d1 की वैल्यू 4 है तो 2 1 जा 2 2 जा, सॉरी d1 की वैल्यू 8 है, 2 1 जा 2 4 जा, तो 4 d2 यहाँ पर ऐसे आया है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर. सो 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई d2. तो d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 डिवाइडेड बाय 4 एंड वी गेट 6 सेंटीमीटर. हेंस द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने सभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हुए मिल रहे हैं, तो आपको ऐसी आदत नहीं डालनी कि आपको सॉल्व हुए न्यूमेरिकल्स आप हर एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं, आप आपके नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो, आपने लेक्चर देखा है, आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, आपको फॉर्मूला पता है, तो सभी न्यूमेरिकल सभी एक्सरसाइज आपको खुद से ट्राई करना है. ओके, डोंट सॉल्यूशन बाद में देखना. जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल से, तो आप वहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हो, बट ये आदत डालना नहीं है कि आपको हर एक सॉल्यूशन आपको देखना है, हर एक न्यूमेरिकल आपको देख के ही सॉल्व करना है. ओके, ऐसी आदत नहीं डालनी है, खुद से ट्राई करिए. बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे ही कॉपी करते हो तो ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन का पार्ट समटाइम्स एग्जाम में आप भूल जाते हो, स्मॉल स्मॉल मिस्टेक करते हो. तो ये मिस्टेक ना हो इसलिए आपको कैलकुलेशन खुद से करना है, कॉपी नहीं करना है. ओके, तो आप खुद से ट्राई करेंगे ना कैलकुलेशन. यस, चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप आर एंड ईच ऑफ द डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज. ओके, तो ये जो शेप दिया है वो कौन सा है? रोम्बस शेप है. एंड डायगोनल दिया है 45 एंड 30 सेंटीमीटर, एंड उन्होंने यहाँ पर 3000 टाइल्स भी कहा है. एंड द टोटल कॉस्ट पॉलिशिंग द फ्लोर हमें निकालना है, जो पर मीटर स्क्वायर है 4. देखिए नंबर ऑफ टाइल्स है 3000, लेंथ ऑफ द टू डायगोनल्स ऑफ द टाइल 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ द वन टाइल का हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय d1 मल्टीप्लाई बाय d2. सो वी गेट 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो जाएगी मेरी वन टाइल की एरिया. ओके, अभी मल्टीप्लाई करना है इसे 3000 से, सो आई कैन गेट द एरिया कवर बाय 3000 टाइल्स. अभी स्टूडेंट्स आपको एक ट्रिक बता देता हूँ. आपको यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करने की जगह पर आप इसे ऐसे ही रख दीजिए. तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर क्या है यहाँ पर? 4 यहाँ पर है. ओके, सो स्टूडेंट्स ये जो 2 यानी उन्होंने क्या कहा है? मीटर स्क्वायर में दिया है. तो स्टूडेंट्स आपने जो यूनिट निकाला है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला है, तो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर. ओके, यहाँ पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. अगर आप इसे ही 4 से डिवाइड करते हो या तो मल्टीप्लाई करते हो या तो जो ऑपरेशन करते हो आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज सेंटीमीटर में दिया है, आपको पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया है. सो दैट्स वाई 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4 वी गेट 810 रुपीज. Hence the required cost is 810 rupees. Question number 8 है, Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to the twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन देखिए. लेट द साइड ऑफ द ट्रेपेजियम रोड साइड बी x सेंटीमीटर, सो द अपोजिट पैरेलल साइड क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ x मीटर हो जाएगी. सो h इज इक्वल टू 100 मीटर्स, एरिया दिया है 10,500 मीटर स्क्वायर. तो जस्ट वैल्यू पुट करिए एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम में, हाफ मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय h, या तो h मल्टीप्लाई विथ a प्लस बी अपॉन 2. सो दैट्स वाई 10,500 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस x मल्टीप्लाई विथ 100.
तो वी गेट x इज इक्वल टू 70 मीटर। तो x की वैल्यू अगर 70 आता है तो ए बी क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ इट, सो वी गेट 140 मीटर्स। हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ यहाँ पर आ जाती है 140 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, टॉप सरफेस ऑफ रेज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ए बी सी एच यहाँ पर दिया है। तो इसे अगर हम यहाँ पर नेमिंग करते हैं तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एच सी डी जी उन्होंने कहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसे नेम भी देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर हमें नेम देना है। तो एच सी डी एंड जी यहाँ पर हम नेम देंगे। देन आफ्टर दैट डी जी ई एफ है, तो डी जी यहाँ पर देखिए, तो स्टूडेंट इसका जो हम नेमिंग देते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ओके, सो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ए बी सी एच मतलब ये हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एच सी डी जी हो जाएगा। देन आफ्टर दैट एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम जी डी ई एफ यहाँ पर हो जाएगा। सो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ए बी सी एच इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम जी डी ई एफ। सो हमें यहाँ पर मिल जाता है 32 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एच सी डी जी इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी, वी गेट 11 मल्टीप्लाई बाय 5 जो 55 मीटर स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस इज इक्वल टू 32 प्लस 55 प्लस 32, वी गेट 119 मीटर स्क्वायर। हेंस द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 119 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर इज अ पेंटागोनल शार्प शेप पार्क एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरियाज। ये जो फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू डिफरेंट वेज, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। ओके, आप कोई अदर वे अगर आपको पता है तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, उन्होंने यहाँ पर एक 15 मीटर दिया है, 15 मीटर है, ये 15 है और ये टोटल 30 है। तो दोनों का वेज देखिए यहाँ पर फ्रॉम ज्योतिष डायग्राम यहाँ पर ये 15 मिल रहा है। सो एरिया ऑफ द पेंटागोनल शेप यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रैपेजियम, ये ट्रैपेजियम हमें दिख रहा है, ये ट्रैपेजियम, ये भी ट्रैपेजियम दिख रहा है। सो दैट्स वाई ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द ट्रैपेजियम ए बी सी डी एंड वी गेट, यहाँ पर वैल्यू जस्ट पुट करना है, ए प्लस बी के जगह पर 15 प्लस 30 एंड एच यहाँ पर 7.5 हमने पुट किया, बिकॉज 15 डिवाइडेड यहाँ पर 2 डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7.5। तो स्टूडेंट्स ये 2 एंड 2 गेट कैंसल। देन आफ्टर दैट 45 मल्टीप्लाई बाय 7.5 वी गेट 337.5 मीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, कविता की जो डायग्राम है उसने देखिए कैसे फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ द पेंटागोनल शेप इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी ई प्लस यहाँ पर जो स्क्वायर बन रहा है उसका उन्हें वे एरिया फाइंड आउट किया है। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर बी सी डी ई, सो हाफ मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 15, सो वी गेट हाफ मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 2 25, बिकॉज इसकी भी हाइट 15 है। सो यहाँ पर आ जाता है 337.5 मीटर स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स यस वी कैन आल्सो फाइंड द अदर वे टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गिवन पेंटागोनल शेप। ज्वाइन सी, आपको क्या करना है, सी को ज्वाइन करना है। सो टू डिवाइड द फिगर इनटू 2 पार्ट्स, द ट्रैपेजियम ए बी सी मतलब ये वाला ट्रैपेजियम मिल जाएगा। देन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स एंड द राइट ट्रायंगल ई डी सी, एरिया ऑफ द ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ई डी सी प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी ई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट फिगर फ्रेम हैज outer dimension 24 multiplied by 28 centimeter and inner dimension 16 multiplied by 20 centimeter. Find the area of each sections of the frame if the width of each section is same. तो स्टूडेंट देखिए सोल्यूशन यहाँ पर h1 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 20 इज इक्वल टू वी गेट 4 सेंटीमीटर, h2 यहाँ पर आ जाता है अगेन 4 सेंटीमीटर। So area of the trapezium A is equal to half multiplied by A plus B multiplied by H1. So half multiplied by 24 plus 16 multiplied by 4. 2 1 जा, then यहाँ पर 2 get cancel. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाता है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई बात समझ में आपको? यस, तो ये 2 1 जा 2 2 जा। ओके, so area of the trapezium A is equal to area of the trapezium C is equal to 80 centimeters. So area of trapezium B is equal to area of the trapezium D and we get 96 centimeters square.
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 28 एंड 20 हमने इंसर्ट किया था. So hence the areas of the four parts A, B, C and D are 80 centimeter square, 96 centimeter square, 80 centimeter square and 96 centimeter square respectively. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 11.2 यहाँ पर एंड हुई. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.